Hello students, today this is the another video of class 7 science, and here in this video we will solve some questions based on the chapter 1 that we had studied, that is nutrition in plants. So the type of questions are multiple choice question, and the first is tick the correct option. Here 4 options are given and you have to choose the correct one. So let's start. The first question is, which one of the following is not a saprophyte? So first of all, you must know what is saprophyte. So saprophytes are those organisms which derive their nutrition from dead and decaying matter. They derive their nutrition from dead and decaying matter. So if you see the options, you will find that mushroom is a saprophytic organism. Bread mold is also a saprophytic organism. It takes its nutrition from the decaying bread, and bacteria are also the saprophytes. They grow on the dead and decaying matter and they derive their nutrition from there. So here the right answer is cuscuta, because you know that cuscuta is a plant that derive its nutrition from the living organism, from the living plant, and it is parasitic in nature. Okay, so the correct answer is cuscuta because it is parasitic. Now the next question is, an organism that can convert atmospheric nitrogen into soluble form is. So you have to choose the organism that convert the atmospheric nitrogen into the soluble form, and as you know, there is a bacteria known as rhizobium. It can convert the atmospheric nitrogen into the usable form so that the plants can use it. As you know, the plants cannot use the atmospheric nitrogen directly, so there are so many bacteria that can convert this nitrogen into usable form, and rhizobium is one of that bacteria, and it lives in the do they live? They live in the root nodule of leguminous plants. So the right answer is rhizobium. Next question is, iodine gives blue black color in the presence of. आयोडीन जो है वो किसकी प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है? तो एज यू नो दैट स्टार्च इज़ अ सबस्टेंस जिस पे अगर आप आयोडीन डालते हो देन इट विल गिव द ब्लू ब्लैक कलर. सो इट इज़ अ स्टार्च टेस्ट. हम आयोडीन की हेल्प से स्टार्च का टेस्ट करते हैं कि किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं. तो अगर कहीं पर स्टार्च प्रेजेंट है और उसमें हम आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर. एंड दिस ब्लू ब्लैक कलर इज़ द साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. सो द करेक्ट आंसर इज स्टार्च. Next question is, which part of the plant gets carbon dioxide from the air for photosynthesis? प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करने में हेल्प करता है, एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. तो आपको पता है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उस लीव्स के लोअर सरफेस पे बहुत सारे टिनी ओपनिंग्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं. सो स्टोमेटा इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा मैटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है? सो द ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट एंड नाइट्रोजन. तो अगर आप फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद करो तो उसमें आप क्या लिखते हो? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन.
ओके, सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्या है, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दीज 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, लाइट मीन सनलाइट। तो ये 3 तो आपके ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ नॉट नेसेसरी, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है फॉर द occurrence of photosynthesis. Now the next question is, when we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens, we see numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? ठीक है, अभी हमने देखा कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनके लोअर सरफेस पे बहुत सारे टिनी स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। उन स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, टू एक्सचेंज द गैसेस, जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेकअप करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। एंड स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन भी होती है, वाटर वेपर भी रिलीज़ होती है फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज, आप जानते हो पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इट ट्रैप्स द इंसेक्ट्स। तो ये क्यों इंसेक्ट को ट्रैप करता है, क्योंकि इट ग्रोज इन अ सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन, क्योंकि ये ऐसी सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इस नाइट्रोजन की कमी को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, और जिससे इंसेक्ट की बॉडी से वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज़। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए हुए हैं, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड एंड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, दोनों एक ही है, ब्रेड मोल्ड। ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या इंसेक्टिवोरस हैं या सैप्रोफिटिक हैं या फिर पैरासिटिक हैं। तो आप जानते हो ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड ये क्या है, फंगस हैं, दे आर द फंगस। और जो फंगस होता है वो क्या होता है, सैप्रोफिटिक इन नेचर होता है। मीन्स सैप्रोफिटिक होता है मीन्स वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है। तो आपका आंसर होगा सैप्रोफिटिक। ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज saprophytic in nature. They derive their nutrition from the dead and decaying matter. Now the next question is, in the absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaves? ठीक है, किसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? ठीक है, तो गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, वैक्यूल, स्पेस बिटवीन द सेल्स। ठीक है, तो अभी आपने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखा था, तो उसमें आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर, सनलाइट और क्या ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल। सो विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। बाकी इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। क्लोरोफिल ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है एंड सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी गार्ड सेल, वैक्यूल, स्पेस बिटवीन सेल, इन सब के ना होने से भी कोई फोटोसिंथेसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फोटोसिंथेसिस अगर होगी तो क्लोरोफिल इज़ मस्ट, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। सो द राइट आंसर इज़ क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन is fill in the blanks. So here you have to complete the statement by filling the blanks. The first question is, green plants are called dash because they synthesize their own food. Green plants को हम क्या कहते हैं, किस बेसिस पर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, they synthesize their own food. तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स और called autotrophs because they synthesize their own food. ठीक है, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में खुद बना लेते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ आर कॉल्ड। ठीक है, अभी हमने देखा कि प्लांट्स के जो
लीव्स होती हैं उनके लोअर सरफेस पे बहुत सारे न्यूमरस स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट स्टोमेटा। नाउ द थर्ड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकेन इज। ठीक है, लाइकेन में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, तो आपने चैप्टर में पढ़ा कि लाइकेन क्या है। लाइकेन इज़ अ एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा, फंगस एंड एल्गा। ठीक है, एल्गा और फंगस दोनों एसोसिएट कर कर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। और इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। इट इज़ कॉल्ड सिम्बियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सिम्बियोसिस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकेन इज सिम्बियोसिस। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं इन सच अ मैनर दैट दे बेनिफिट ईच अदर, एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है फंगस जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो वो एल्गी पे डिपेंड होता है, तो एल्गी जो है वो इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और फंगस इसको वाटर, मिनरल और ज़रूरी चीज़ें इसको प्रोवाइड करता है। नाउ द फोर्थ वन इज़ प्लांट शो डैश एंड डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने पढ़ा कि प्लांट्स में दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होती है, दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड हेंस दे परफॉर्म द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, दे डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। They are called heterotrophic. तो आप लिखेंगे plants show autotrophic and heterotrophic modes of nutrition. Now the next is the leaves of cactus are reduced to spines or thorns to reduce loss of water by. ठीक है, आपने कैक्टस देखा होगा, तो कैक्टस की जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, दे मॉडिफाई इनटू स्पाइंस और थॉर्न्स, वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो प्लांट्स की बॉडी से जो वाटर का लॉस होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो आपको लिखना है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। एंड इसी वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो कैक्टस की लीव्स होती हैं वो स्पाइंस या थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो लीव्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज़ होता है। तो जब लीव्स नहीं होंगे तो स्टोमेटा भी नहीं होगा, तो वाटर वेपर उसके थ्रू रिलीज़ भी नहीं होगा। और आप जानते हो कैक्टस जो होता है वो क्या होता है, ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, सो दे हैव टू सेव द वाटर। तो ये एक एडेप्टेशन है टू सेव द वाटर बिकॉज दे लिव इन द कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। ठीक है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और जहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है उसको री राइट करना है करेक्टली। Okay, the first question is chlorophyll traps sunlight for photosynthesis. Chlorophyll sunlight को trap करता है photosynthesis के लिए। Yes, very true. This is true. Okay, this is true. Chlorophyll is the green pigment. Because of the presence of chlorophyll, plants look greenish, and that chlorophyll is very important because it captures the sunlight. Hence, the photosynthesis can occur. Now, carbon dioxide is the waste product of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिकॉल करिए तो आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, वाटर यूज़ होता है, ठीक है, सनलाइट यूज़ होती है, सनलाइट यूज़ होती है एंड क्लोरोफिल यूज़ होता है, क्लोरोफिल यूज़ होता है। इन चारों चीज़ों को यूज़ करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है जो कि प्लांट का खाना होता है, और प्लस
इस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होती है एज अ वेस्ट या बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होती है, तो ऐसा तो नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, O2। ओके। थर्ड इज द एल्गा एंड फंगस टुगेदर आर नोन एज लाइकेन्स। एल्गा और फंगस जब एक साथ रहते हैं तो उनके एसोसिएशन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। येस, दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ ट्रू। फोर्थ वन इज प्लांट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पोटेशियम टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स को पोटेशियम की ज़रूरत होती है? जी नहीं, प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ पोटेशियम यू विल राइट नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन की हेल्प से बनता है। नाइट्रोजन एक कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। यहाँ पर पोटेशियम लिखा है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट एंड इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज पैरासाइट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, पैरासाइट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट की बात की जा रही है। तो पैरासिटिक प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, दिस इज़ फॉल्स। ओके, तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, पैरासाइट कंटेन्स क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। Now the last statement is photosynthesis in the plants like cactus takes place in the roots. In cactus फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, रूट्स में होती है। ये स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज कैक्टस में फोटोसिंथेसिस जो है वो उनके स्टेम में होती है। ठीक है, क्योंकि कैक्टस जो होता है वो अपनी लीव्स को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देता है, तो लीव्स नहीं होती हैं, बेसिकली लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है नॉर्मली, बट क्योंकि कैक्टस में लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं और वो थॉर्न्स या स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो उनके स्टेम में होता है, जो फ्लैशी फ्लैट स्टेम होते हैं वहाँ पर होता है, रूट्स में नहीं होता है। तो आप रूट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, स्टेम, यू विल राइट स्टेम। ओके, सो this is the last statement, last question of this video. So in the next video we will solve some more questions related to the chapter 1, that is nutrition in plants. I hope it is clear to all, and till then, thank you.